Good morning, students. I welcome all the aspirants and pursuers for the Punjab Master Cadre English Examination 2021 in our coaching center Competition Guru. So here today I am going to discuss the syllabus and the strategies of preparing for the examinations. First of all, I would like to say that Competition Guru Coaching Center is the eminent platform for all government jobs in North India. We are able to provide 100% result to our students, and this is the great achievements ever achieved by any center or institute. So if you join us, we will guide you and we assure you that you will get success in achieving your goal, whatever the field is. But today I am going to discuss with you the Master Cadre Examination of Punjab. So let us first discuss the syllabus of Punjab Master Cadre English Examinations. So dear aspirants, as you are watching that number one Indian literate English writers, you will have to gain the knowledge about Indian English writers, just like well-known and eminent writer Dr. R.K. Narayan, Raja Rao, Arundhati Rai, Khushwant Singh, Mulk Raj Anand, and Girish Karnad, Anita Desai, Rabindranath Tagore, Sarojini Naidu, Ramanujam, and Amitabh Ghosh, etc. So they are considered to be the milestone of the Indian English literature, and you can say that Anglo-Indian literature is founded by them. A few authors or poets or dramatists are not mentioned, but they may be also the part of this syllabus. Next is the Elizabethan age. In the Elizabethan age, this age is also called the Shakespearean age. इस एज को हम Shakespearean age भी कहते हैं. This age is also called the Shakespearean age. और इस एज में well known and eminent writers, ड्रामेटिस्ट, नॉवलिस्ट, एसेइस्ट हुए हैं, जिसमें से फ्रांसिस बेकन का नाम एज एन एसेइस्ट आता है, नॉवलिस्ट में क्रिस्टोफर मार्लो, ड्रामेटिस्ट में शेक्सपियर हु इज नोन द फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा, एंड एडमंड स्पेंसर. ये जो हैं नॉवलिस्ट हैं एडमंड स्पेंसर, तो ये वेल नोन नेम्स इसमें आते हैं एलिजाबेथन एज में. तो ये दीज ऑथर्स मीन्स एडमंड स्पेंसर, शेक्सपियर एंड क्रिस्टोफर मार्लो आर द पार्ट ऑफ आवर सिलेबस taken from the Elizabethan age. Next is Jacobean to Restoration age.
the poets, dramatists, essayists, and novelists taken from Jacobeans to Restoration is, and one of them is John Donne. John Milton, the age of John Milton is also or called Miltonic age, and even he was a Puranitic, and Ben Jonson, John Dryden, ये चार हमने लिए हैं जैकोबियन टू रेस्टोरेशन एज। इन द रोमांटिक एज अगर हम सिलेबस की बात करते हैं तो रोमांटिक एज और रोमांटिक पीरियड में जो उन्होंने लिया है वो विलियम ब्लेक, विलियम वर्ड्सवर्थ, जो कि कहते हैं कि नेचर का जितना लाइव डिस्क्रिप्शन विलियम वर्ड्सवर्थ ने किया है शायद ही कोई पोएट कर सके। सैमुअल टेलर कॉलरिज मीन्स एस.टी. कॉलरिज के नाम से जाने जाते हैं, सैमुअल टेलर कॉलरिज। लॉर्ड ब्रायन, पी.बी. शैले, जॉन कीट्स, जेन ऑस्टिन, सर वॉल्टर स्कॉट, मैरी शैले, मैथ्यू, ग्रेगरी लीविस एंड मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट, ये किससे लिए गए हैं? रोमांटिक पीरियड से। उसके बाद जो सिलेबस में है हमारे हैं वो है विक्टोरियन पीरियड्स, मीन्स द poets, dramatists, essayists and novelists taken from Victorian period are, and Victorian period means the period of Tennyson, Alfred Lord Tennyson, Robert Browning, Thomas Carlyle, John Ruskin, Walter Peter, Charlotte Bronte, Emily Bronte, Charles Dickinson, Thomas Hardy. Thomas Hardy is compared to that of R.K. Narayan, and Samuel Beckett, I.A. Richards, F.R. Lewis and William Empson. सो ये किससे लिए गए हैं? ये सभी विक्टोरियन पीरियड से। नेक्स्ट जो है 6 नंबर पर हमारा आता है मॉडर्न पीरियड और मॉडर्न एज। और मॉडर्न एज में सबसे पहला नाम आता है T.S. इलियट का, W.B. ईस्ट का, F.R. लुइस का, विलियम एम्सन का, E.M. फोस्टर का। मॉडर्न पीरियड से D.H. लॉरेंस, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, I.R. रिचर्ड, इन सब का नाम किससे आता है? मॉडर्न पीरियड से। उसके बाद आते हैं अगर हम कंटेम्पररी पीरियड में, तो सबसे पहला नाम तो आता है जॉर्ज ऑरवेल का, और ये एज भी उन्हीं के नाम से जानी जाती है। विलियम गोल्डिंग, डोरिस लेसिंग, ग्राहम ग्रीन, सलमान रश्दी, V.S. नायपॉल एंड स्टीफन लीकॉक, ये किससे लिए गए हैं? ये हमारे कंटेम्पररी पीरियड से लिए गए हैं। लास्ट में है हमारा ग्रामर और लिंग्विस्टिक सेक्शन। तो इजीएस्ट वे इज दैट, जो हमारा सिलेबस है उस अकॉर्डिंग टू दैट सिलेबस अगर हम प्रिपरेशन करते हैं और हम लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर अगर देखते हैं तो उसमें हमको एक चीज देखने को मिलती है कि मोस्ट ऑफ द पार्ट इज टेकन फ्रॉम ग्रामर एंड लिंग्विस्टिक सेक्शन इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ दिस लिटरेरी सेक्शन, बिकॉज इट इज द scheme of government to know the eligibility criteria of selection of the student on the basis of English language, not mostly focusing upon literature. But it doesn't mean that we should not study literature. We have to study
from beginning to the end all the syllabus precisely and regularly and attentively. You know, listening makes a man learned and attentive. Attentive listening is create an impression on the mind of the aspirants or the students or the listener, which is very important to crack any examinations. तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जितना ध्यान से आप किसी भी टॉपिक या किसी भी सब्जेक्ट के बारे में स्टडी करोगे, जितना अटेंटिवली आप लिसनिंग, आपकी जो लिसनिंग स्किल होगी, जितनी अटेंटिवली आप किसी को सुनोगे, अपने गाइड को, अपने कोच को, अपने टीचर को, उतना ही आप उसका इम्प्रेशन, वो इम्प्रिंट हो जाएगा आपके माइंड में और वो बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर हम शेक्सपियर की बात करें, जैसे कि सबसे पहले जो पीरियड लिया गया है इंडियन, ये एलिजाबेथन एज में सेकंड पार्ट जो है, अगर इनको छोड़ दें और इसमें से अगर हम बात करते हैं शेक्सपियर की, तो शेक्सपियर का सबसे जो लास्ट प्ले था टेम्पेस्ट था। तो मैं इसमें से कुछ सेलेक्टेड वैसे प्लेस बताता हूँ जो आपको देखने चाहिए, सोलिलोक्वीज भी हैं उनमें। तो सबसे पहला प्ले तो आपको एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा। सेकंड प्ले आई विल सजेस्ट, जिसके बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, वो है मैकबेथ। तीसरा प्ले जिसके बारे में आप रोमांटिक प्ले है, रोमांटिक ट्रेजेडी, और वो है ट्वेल्थ नाइट। और लास्ट प्ले ऑफ शेक्सपियर वाज द टेम्पेस्ट, ऐसे ही मर्चेंट ऑफ वेनिस, जूलियस सीजर। तो ये जो प्लेस हैं, इनके बारे में इन डेप्थ नॉलेज आपको होनी चाहिए। To know about Shakespeare is very difficult because शेक्सपियर को जानना, उसको समझना बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन हाँ हम कोशिश कर सकते हैं कि उसके प्लेस के थ्रू हम उससे कुछ गेन कर सकें। मेरा कहने का मतलब है कि उसका प्लॉट कंस्ट्रक्शन क्या है, उसके आइडियाज़, उसकी थ्योरीज, उसके व्यूज़, उसके करेक्टर्स, कहाँ से उसने करेक्टर्स लिए हैं, क्या आयरनी है, क्या सैटायर है, जेस्टिंग उसका एक पार्ट रहा है। तो ये ऐसे में हमें किस पर फोकस करना है, शेक्सपियर के इस पार्ट्स पे, इन प्लेस पर। ऐसे ही क्रिस्टोफर मार्लो के जो हैं एडवर्ड फर्स्ट, एडवर्ड सेकंड और एडवर्ड थर्ड, हमें इनको स्टडी करना है, क्रिस्टोफर मार्लो को। एंड अगर मैं बात करता हूँ एडमंड स्पेंसर की, तो जो इनका वर्क है, हमें इनके वर्क को स्टडी करना चाहिए। नेक्स्ट जो आता है दैट इज जैकोबियन टू रेस्टोरेशन एज। और जैकोबियन टू रेस्टोरेशन एज में मेटाफिजिकल पोएट जॉन डन का बहुत अच्छा आपको लिटरेचर मिलेगा, पोएटिक वर्क मिलेगा कि जॉन डन ने को मेटाफिजिकल पोएट के मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री इन्होंने फाउंडेड किया था और वहाँ पर रिसर्च वर्क होता था। तो जॉन डन के बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, उनका पोएटिक वर्क स्टडी करो, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत हेल्पफुल होगा टू क्रैक द एग्जामिनेशन। दूसरा है मिल्टन, जॉन मिल्टन के बारे में कि वो किस एज में ब्लाइंड हुआ था, कौन कौन से वर्क किए हैं, उनके सोनेट कैसे हैं, सेस्टेट क्या होता है और ऑक्टेट क्या होता है एक सोनेट में, सोनेट कितनी लाइन का होता है, ये सारी बातें। फिर उन्होंने कौन सा सोनेट लिखा था, जैसे कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस, इस टाइप से। नेक्स्ट अगर हम जाते हैं तो उसके बाद आफ्टर ब्लाइंडनेस उन्होंने क्या किया था, पैराडाइज लोस्ट, पैराडाइज रीगेन। और इनके उन्होंने 20 वॉल्यूम्स उन्होंने 12 वॉल्यूम्स उन्होंने लिखे थे।
तो अब आप लगाइए कितना बड़ा वर्क है। ऐसे ही वैन जॉनसन और जॉन ड्राइडन का जो प्लेज हैं, है ना, तो ये हमारे लिए हमें स्टडी करना कंपलसरी होगा इस मास्टर कैडर एग्जामिनेशंस के लिए। नेक्स्ट हम अगर लेते हैं रोमांटिक पीरियड की, तो देखिए जब रोमांटिक पीरियड की बात आती है तो सबसे पहला नाम विलियम ब्लेक का आता है, उसके बाद विलियम वर्ड्सवर्थ। जो रोमांटिक आइडिया आया था वो विलियम ब्लेक के माइंड में आया था, और ये आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन था कि विलियम ब्लेक ने से बहुत से पोएट्स ने इंस्पिरेशंस ली हैं। ऐसे ही विलियम वर्ड्सवर्थ है। विलियम वर्ड्सवर्थ को क्या कहा जाता है? द नेचर पोएट। ऐसे ही एस.टी. कॉलरिज, ऐसे ही लॉर्ड बायरन, पी.बी. शैले जिनकी पोएट्री फुल ऑफ पेसिमिज्म से है, ऐसे ही जॉन कीट्स जिनकी पोएट्री रोमांटिक एरा का सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल बन गया है, जॉन ऑस्टन का नॉवेल्स, सल्वाटर स्कॉट का नॉवेल्स, मैरी शैले, मैथ्यू, जॉर्ज लुइस एंड वॉलस्टोनक्राफ्ट, ये जो ऑथर्स हैं, राइटर्स हैं, हमें इन सबको स्टडी करना होगा। नेक्स्ट आता है विक्टोरियन पीरियड। विक्टोरियन पीरियड का नाम आते ही सबसे पहला नाम आएगा एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का। ये जो थे फादर कहे गए हैं इस एज के। और दूसरे नंबर पर आते हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग, जो कि एक ऑप्टिमिस्टिक, और इतने ऑप्टिमिस्टिक थे ये कि अपनी मतलब पोएट्री के थ्रू अपनी फुलफिलमेंट के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते थे, ऐसा इनका पोएटिक डिस्क्रिप्शन था। और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो जॉन रस्किन भी इम्पोर्टेंट है, थॉमस हार्डी द ग्रेटेस्ट नॉवेलिस्ट ऑफ द विक्टोरियन पीरियड, एंड जॉर्ज इलियट एंड मैथ्यू आर्नोल्ड, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। वैसे और भी हैं लेकिन इनको हमें बहुत डीपली स्टडी करना होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं मॉडर्न पीरियड की, तो मॉडर्न पीरियड में सबसे पहला नाम आता है टी.एस. इलियट, वर्जीनिया वुल्फ, जोसेफ कॉनार्ड, जेम्स जॉयस, ई.एम. फोस्टर्स, डी.एच. लॉरेंस ने तो कमाल ही कर दिया था। इनका जो लिटरेचर है, ऐसा लिटरेचर शायद इतना मतलब रोमांटिक, मतलब मॉडर्न पीरियड के होते हुए इन्होंने रोमांस को बहुत ही लाइवली डिस्क्राइब किया है इन मॉडर्न वे। ऐसे ही W.B. ईट्स, और W.B. ईट्स ने ही रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि को बंगाली से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। उसके बाद जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, इनके प्लेज बहुत फेमस रहे हैं, है ना। और ऐसे ही अगर हम बात करें तो I.A. रिचर्ड्स, ये मेन इम्पोर्टेंट हैं। वैसे और भी हैं लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और हमें डीपली स्टडी करना होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कंटेम्पररी पीरियड की, तो सबसे पहला नाम आता है फिलिप लार्किन का, वेल नोन नॉवेलिस्ट जॉर्ज ऑरवेल का, एसेइस्ट विलियम गोल्डिंग्स का, ग्राहम ग्रीन का, V.S. नायपॉल और सलमान रश्दी, इनका नाम आता है। तो ये किसके हैं? कंटेम्पररी पीरियड्स के सारे ये राइटर्स हैं। और भी हैं जैसे अनीता देसाई, बट ये किस में आ गए? इंडियन इंग्लिश राइटर्स में। इंग्लिश राइटर्स में जैसे रविंद्रनाथ टैगोर, कमला दास, तोरू दत्त, R.K. नारायण,
खुशवंत सिंह, मुल्कराज आनंद। मुल्कराज आनंद को आप पढ़िएगा, अनटचेबल उनका बहुत ही फेमस वर्क है और जिसके लिए उन्हें अवार्ड मिले थे। अनीता देसाई, अरुंधति राय, सरोजिनी नायडू एंड अमिताभ घोष। लाइकवाइज इनको हमें स्टडी करना होगा। तो ये था हमारा सिलेबस। अब जो पैटर्न ऑफ पेपर है, मैंने जैसे पहले बताया कि पैटर्न ऑफ पेपर अब पहले से चेंज हो गया है। पहले ज़्यादा फोकस लिटरेचर पर होता था, लेकिन अगर हम लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाकर देखते हैं तो अब टोटली डिफरेंट है। मोस्ट ऑफ द पार्ट इज टेकन फ्रॉम दिस लास्ट सेक्शन ग्रामर एंड लिंग्विस्टिक्स से। सबसे ज़्यादा पार्ट इसी सेक्शन से लिया गया है। तो यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, ये तो कह नहीं सकते कि नहीं भाई हम केवल ग्रामर सेक्शन को ही तैयार कर लेंगे तो हम इतने मार्क्स मतलब स्कोर कर लेंगे। ऐसा नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि इस बार ग्रामर सेक्शन ज़्यादा दे दिया तो इस मतलब लास्ट टाइम ग्रामर सेक्शन ज़्यादा दिया है तो इस बार भी देगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो कुछ भी, वो तो जो पेपर सेट करता है, पेपर सेटर पर डिपेंड करता है। देखिए एक सेट तो बनता नहीं है, कई सारे सेट्स बनते हैं, फिर उनसे मतलब कोलाबोरेट करके उनसे फैच किया जाता है टोटल मटेरियल और तब कहीं जाकर एक ग्रुप एक कमेटी डिसाइड करती है कि कौन सा पेपर हमें कंडक्ट कराना है। तो ये सारी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं ये तो कमेटी पर डिसाइड करती हैं, लेकिन हमें अपनी तरफ से कोई भी वी शुड नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड। कहने का मतलब है हमें कोई भी कमी नहीं छोड़नी है, हमें कोई भी कमी नहीं छोड़नी चाहिए। और हमारे कोचिंग सेंटर का यही मोटो है कि हम अगर लिटिल पार्ट ऑफ ग्रामर भी किसी टॉपिक में आ रहा है किसी एग्जामिनेशन में, क्योंकि हमारे यहाँ मोस्टली प्रिपरेशन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की ही होती हैं, गवर्नमेंट जॉब्स एग्ज़ाम्स की होती हैं, तो यहाँ पर क्या होता है अगर किसी के सिलेबस में थोड़ा भी पोर्शन है, थोड़ी ग्रामर भी है, तब भी हम होलसम ग्रामर ही कवर कराते हैं। ऐसे ही अगर जितना भी लिटरेरी वर्क सिलेबस में दिया है, हमारा मेन मोटो होगा कि उसका माइन्यूट से माइन्यूट इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराई जाए। ये जो नोटिफिकेशन रिलीज होने के बाद से बैचेस कंडक्ट हो गए हैं मास्टर कैडर इंग्लिश एग्जामिनेशंस के, और उन बैचेस में अच्छी स्ट्रेंथ में स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो परफॉर्मेंस रेट है वो 100% ही है। मैं ये नहीं कहूँगा अप्रॉक्सीमेट, है ही 100%। तो यहाँ पर अब मैंने आपसे सिलेबस तो डिस्कस कर लिया। अब नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर इन डिटेल्स। इन डिटेल्स का मेरा कहने का मतलब है कि मैं आपके साथ ये डिस्कस करूंगा और बताऊंगा कि इसका यहाँ पर क्यों यूज हुआ है विद रीजन। तो लेट अस स्टार्ट। देखिए फर्स्ट सेंटेंस है कि देयर आर 20 बॉयज इन दिस क्लास। देयर आर 20 boys in this class. अब यहां पर उसने ये पूछा है कि 20 क्या है, What is 20? अगर हम बात करते हैं तो 20 एक नंबर है। कौन सा नंबर है 20? 20 है डेफिनिट नंबर। डेफिनिट नंबर है 20, और ये किससे पहले लगा हुआ है? नाउन से पहले लगा हुआ है। तो ये क्या है? इट इज एन एडजेक्टिव।
ये क्या है? ये एक एडजेक्टिव है। तो इस टाइप से क्वेश्चंस उसने पहला ही क्वेश्चन जो पुट किया है कि बताइए ये 20 क्या है? वर्ब है, नाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, क्या है? तो आपको देखना है कि 20 क्या है? नंबर है। नंबर कौन सा है? डेफिनिट नंबर है। डेफिनिट नंबर में से भी कौन सा नंबर है? कार्डिनल है या ऑर्डिनल है? तो आपने देखा कार्डिनल है, ठीक है। लेकिन और किससे पहले किसको ये मॉडिफाई कर रहा है? वॉइस को, तो मॉडिफायर है और ये क्या कहेंगे? इट्स एन एडजेक्टिव। नेक्स्ट इज ही वुड वर्क क्विकली। ही वुड वर्क अब उसने ये पूछ लिया आपसे कि ये क्विकली क्या है? वो काम करेगा, कैसे करेगा? तो ये बता रहा है मैनर को, और कौन मैं मतलब एडवर्ब ऑफ मैनर। तो ये क्या है? एडवर्ब है। तो एक्चुअल में सेंटेंस खुद ही बता देता है कि क्या है। अब मैं आपके सामने जैसे ये मेरे पास क्वेश्चन पेपर है और इसमें मैं आपको बताता हूं कि इसका जो थर्ड क्वेश्चन है वो ये है कि ही इज ऑन द कमिटी। ही इज ऑन द कमिटी। ही इज ऑन द कमिटी और उसने इस पार्ट को अंडरलाइन कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कौन सा पार्ट है? ये हो गया प्रीपोजिशन। इसको हम क्या कहेंगे? प्रपोजिशन। आंसर विल बी प्रपोजिशन। मैं यहाँ ये नहीं कह रहा हूं कि इसका क्या यूज हुआ है। उसने पूछा है क्या ये कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है, प्रपोजिशन है या क्या है? तो एडवर्ब है। तो आंसर मेरा क्या है? इट्स अ प्रपोजिशन। ये क्या है? एक प्रपोजिशन है। तो ऑन एक प्रपोजिशन के रूप में यहां पर यूज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड दैट ज्वाइन वर्ड्स और सेंटेंसेस टुगेदर। द वर्ड दैट ज्वाइंस वर्ड्स, ठीक है, जो वर्ड्स को ज्वाइन करता हो या सेंटेंसेस को ज्वाइन करता हो, उसको हम क्या कहते हैं? वर्ड्स और सेंटेंसेस को एक साथ ज्वाइन करता हो तो उसको हम क्या कहते हैं? तो वो कहलाता है वर्ब। क्योंकि वो ही है, जैसे एक वर्ड है शी और दूसरा वर्ड है स्कूल, तो उसको ज्वाइन करने वाला हम सेंटेंस लिखते हैं तो हम कहते हैं शी गोज टू स्कूल। तो इसका मतलब वर्ब में किसका रोल प्ले करता है? वर्ड्स और सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन करने का काम करता है। नेक्स्ट थिंग इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज शी डिड द जॉब विदाउट, और ये फिल इन द ब्लैंक्स का है, एंथुसियाज्म। शी did the job without, और यहां पर enthusiasm, ठीक है, enthusiasm। तो यहां पर उसने चार ऑप्शंस हमें दिए हैं, मच, ऑल, मैनी और लिटिल। ऑल तो आप देखो कि ऑल क्या होता है? ये इंडेफिनिट एडजेक्टिव है, ये इंडेफिनिट नंबर है, ठीक है। ये क्वांटिटी के लिए भी यूज होता है और नंबर के लिए भी यूज होता है। लिटिल केवल क्वांटिटी के लिए यूज होता है और लिटिल नेगेटिव होता है। ऐसे ही अगर मैनी की बात करें तो मैनी नंबर के लिए यूज होता है।
लेकिन एंथुसियाज्म क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो हम इसके लिए क्या लाएंगे, मच। हमारा आंसर होगा ए कि मच एंथुसियाज्म। इसमें हम क्या करेंगे, मच एंथुसियाज्म। हम लिटिल का मीन्स नेगेटिव हो जाएगा। मैनी किसके लिए यूज होता है, नंबर के लिए। और फोर्थ ऑप्शन उसने दे रखा है ऑल। ऑल चूंकि इंडेफिनिट है, पहली बात इंडेफिनिट है, दूसरी बात नंबर ऑफ क्वांटिटी भी है और नंबर ऑफ वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी है और इंडेफिनिट नंबर है। तो यहां पर अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो लिटिल तो नहीं लगा सकते, क्योंकि लिटिल तो क्वांटिटी के लिए हम क्या लगाएंगे, मच का यूज करेंगे कि हाउ मच, इसका मतलब होगा मच एंथुसियाज्म। नेक्स्ट fill in the blank says there is nothing. Next, there is nothing that fill in the blanks of us can do to help. Of us can do to help. अब इसमें इसने 4 ऑप्शंस दिए हैं। एक तो है एवरी। एवरी का मैं आपको बता दूं, एवरी क्या हो जाता है, एडजेक्टिव है। एवरी एडजेक्टिव है। फिर इसने दिया है एनी। एनी अपने आप में क्या होता है, नेगेटिव होता है। ऐसे ही इसने दिया है हाफ। हाफ नंबर है और नन ये भी इंडेफिनिट नेगेटिव में यूज होता है। तो देयर इज नथिंग दैट क्या होगा, एनी और नन। देखिए हाफ और एवरी तो हो नहीं सकता, तो देयर इज नथिंग दैट एनी ऑफ अस, क्योंकि नथिंग ऑलरेडी नेगेटिव, 2 नेगेटिव एक साथ यूज नहीं होंगे, तो हम क्या लाएंगे, एनी ऑफ अस कैन डू टू हेल्प। अगर नथिंग नहीं होता, यहां होता देयर इज समथिंग दैट नन ऑफ अस कैन डू टू हेल्प, तो वो यहां पर मीनिंग चेंज हो जाता। नेक्स्ट हाउ। नेक्स्ट इज नंबर 8। मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूं इसके नीचे, हाउ मनी डू यू हैव। इसके इसने 4 ऑप्शंस दिए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है मैनी, और मैनी किसके लिए होता है, नंबर के लिए। अगर क्वांटिटी की बात करते हैं तो क्वांटिटी में फ्यू आता है, वो नंबर के लिए आता है। लॉट ऑफ वो भी नंबर के लिए आता है। तो क्या आएगा, हाउ मच। जो ऑप्शन बी है वो इसका करेक्ट है कि हाउ मच मनी डू यू हैव। नंबर 9 है She was so tired that she could not walk. She was so tired that she could not walk. और ब्लैंक मैं यहां ले रहा हूं। ब्लैंक के बाद है इसमें फर्दर। फोर ऑप्शंस हमें क्या क्या दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है मोर फर्दर, नहीं हो सकता क्योंकि फर्दर अपने आप में फार की क्या है, फार का कंपैरेटिव डिग्री है। फर्दर अपने आप में फार का कंपैरेटिव डिग्री है। एनी हम इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि एनी इंडेफिनिट है और यह एनी डिस्टेंस के लिए यूज नहीं होता है। एक ऑप्शन हमें दिया हुआ है अ ग्रेट डील ऑफ, इसको भी हम नहीं ले सकते क्योंकि ये फ्रेज है। तो हमें क्या लेना है, जो ऑप्शन बी है ये है अलोंग, इसमें आएगा ऑप्शन बी अलोंग, हमें इसमें अलोंग लेना है। नेक्स्ट है वास्को डी गामा वॉस, नंबर 10। वास्को डी
Gama was Vasco da Gama was first European sailor to come to India. Vasco da Gama was first European sailor to come to India. Options are, यहाँ पर पहली बात ये है वास्को डी गामा was options 4 दे रखे हैं, only the very 4 ऑप्शंस हैं, बट यहाँ पर ये पर्टिकुलर बन जाता है। ये कौन बन जाता है वास्को डी गामा? पर्टिकुलर वन। तो हम क्या यूज करेंगे? आर्टिकल द का यूज करेंगे। तो इस टाइप से वो फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन पूछता है। और नंबर 11 है वुड फ्लोट्स ऑन वाटर। वुड फ्लोट्स ऑन वाटर, ये ब्लैंक दे रखा है, ऑप्शन दिए हुए हैं, ये सॉरी वुड है, WOOD। वुड का मीन्स यहां पर राफ्ट से भी हो सकता है, लकड़ी से भी हो सकता है, तख्त से भी हो सकता है, प्लांट से भी हो सकता है। तो वो कहता है कि वुड फ्लोट्स ऑन मीन्स लकड़ी। तो हमें 3 ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज ए, सेकंड ऑप्शन इज द, थर्ड ऑप्शन इज मोस्ट एंड नो डिटर्मिनर। लेकिन लगेगा क्या? लगेगा द वुड फ्लोट्स ऑन वाटर। तो ये थे फिल इन द ब्लैंक्स वाले, और जो हमने अभी प्रपोजिशन की। नेक्स्ट हम चलते हैं अगले क्वेश्चंस पर। वो ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नो सूनर डिड द ट्रेन, नो सूनर डिड द ट्रेन at the platform then the passenger rushed towards it। अब हमारे पास नो सूनर डिड लगा हुआ है, ऑलरेडी पास्ट में सेंटेंस यूज हो चुका है। और नो सूनर डिड द ट्रेन, ऑप्शन दिया हुआ है अराइव, अराइव्ड, विल अराइव, हैड अराइव्ड। तो इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो हमारा ऑप्शन होगा अराइव। No sooner did the train arrive at the platform than the passengers rushed towards it। ठीक है, arrived यूज नहीं करना है क्योंकि यहां पर did लगा हुआ है, यहां पर did लगा हुआ है, इसलिए arrived का यूज नहीं होगा, और ना ही will arrive का होगा, ना ही had arrived का होगा। नेक्स्ट इज much since they were here last। much since they were here last। सेंटेंस जैसे हैज हैपन्ड, was happened, would happen, have happening। फोकस ऑन दिस पॉइंट, किस पर? इस पर। सिंस दे वर हेयर लास्ट, उस समय से, जब से वे यहाँ थे, बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो चुका है।
तो वो क्या कहेगा, मच हैव हैपन्ड, मच हैव हैपन्ड सिंस दे वर हियर लास्ट, तब से, जब से वो यहाँ थे तब से बहुत कुछ हो चुका है। नेक्स्ट 14, he to the teacher about his, she the best apples from the basket, she the best apples from the basket. The best apples, choose, choose was chosen, choosing, क्या आएगा, choose, CHOOSE, ये स्पेलिंग होती है, इसका choose आएगा। नेक्स्ट इज he to the teacher about his homework, he to the teacher about his होमवर्क। ऑप्शंस दिए हैं, लाई, लाइंग, लेट, लाइट हैं, क्या आएगा, ही लाई, वो बोलता है टू द टीचर अबाउट हिज होमवर्क, वो अपने टीचर से अपने होमवर्क के बारे में झूठ बोलता है। लाइट नहीं लगा सकते, देखिए ये सेंटेंस, इसको, इस टाइप के सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, अगर हमने यहाँ पर लाइट लगा दिया तो आप कहेंगे कि सर ये तो सही हो जाएगा, लेकिन रीजन इज दैट अगर ही लाइड टू द टीचर अबाउट हिज होमवर्क, उसने अपने होमवर्क के बारे में टीचर को झूठ बोला, तो ये फिर उसकी आदत में नहीं आएगा, ये उसकी हैबिट बन चुकी है। और हैबिट हमेशा किस में प्रेजेंट होती है, एक्सप्रेस करते हैं हम प्रेजेंट टेंस में, और प्रेजेंट टेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे। तो यही रीजन है कि यहाँ पर जहाँ पर डाउटफुल हो तो वहाँ पर ये देख लेना चाहिए कि कहीं वो हैबिट से रिलेटेड स्टेटमेंट तो नहीं है। अगर वो हैबिट से रिलेटेड स्टेटमेंट है तो फिर वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। नेक्स्ट, द प्रिजनर was to death, the prisoner was, ऑप्शन दिया है hung, अगर इसको आप was hung to death तो ये क्या है, सेंटेंस पैसिव में नहीं जाएगा। अगर हंग लगाते हैं हैंग्ड टू डेथ, लेकिन यहां पर आएगा ऑप्शन हैंगिंग, क्योंकि अभी उसकी डेथ नहीं, वो लटकाया जा रहा है, झूल रहा है। द प्रिजनर वॉज हैंगिंग टू डेथ, लटकाया जा रहा था मौत की सजा के लिए। और नेक्स्ट है द बेल, और स्पेस दिया हुआ है एट रेगुलर इंटरवल्स, एट रेगुलर इंटरवल्स। ठीक है, एक रेगुलर इंटरवल्स पर जो है वो घंटी बजती है, तो मीन्स बजती है। ऑप्शंस दिया है रिंगिंग, रिंग्स, रंग, रिंग। अब बजती है या बज रही है, ये सोचने वाली बात है। तो क्या होगा, द बेल रिंगिंग एट रेगुलर इंटरवल्स। अगर हम रिंगिंग लगाते हैं रिंग्स एट,
तो क्या वो हमने ऐसा कुछ उसमें टाइमिंग फिक्स की हुई है कि वो रेगुलर इंटरवल पर? ये सारे ऑप्शंस हमें रंग्ड नहीं होगा, रिंग्ड नहीं होगा, तो क्या होगा? रिंगिंग। इसका ऑप्शन ए सही है। तो नेक्स्ट है द बस वॉज अपार्ट बाय द ब्लास्ट। अपार्ट का मीन्स टुकड़े टुकड़े हो जाना, बिखर जाना। लेकिन अपार्ट का तब होगा जब इसके साथ कोई ऐसा वर्ड आए जो इसको मॉडिफाई करे। जैसे हम कहते हैं अपार्ट बाय, अपार्ट फ्रॉम दिस, अपार्ट फ्रॉम दैट। तो यहां पर है अपार्ट बाय द ब्लास्ट। द बस वाज नंबर 1 ऑप्शन टॉर्न, नंबर 2 टीयर्ड, नंबर 3 टॉर्न, नंबर 4 टीयर्ड। यहां पर ऑप्शन नंबर 3 आएगा टॉर्न। द बस वाज टोर्न अपार्ट। कंप्लीट सेंटेंस है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी क्योंकि सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। सेंटेंस किस में है? पैसिव वॉइस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ माई बुक्स, और ऑप्शन दिया हुआ है मिसिंग से पहले आर, इज, हैज, वॉज। अब यहाँ पर देखने वाला है कि हमारे पास जो वन यूज हुआ है उसके लिए हम कौन सा वर्ब यूज करेंगे? इज, आर, हैज, वॉज। तो वन ऑफ माई बुक्स, वन ऑफ माई बुक्स, तो बुक में से तो बुक्स तो प्लूरल है, लेकिन उनमें से एक, और उनमें से एक तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? इज का यूज करेंगे। तो वन ऑफ माई बुक्स इज मिसिंग। नेक्स्ट, वन मस्ट ट्राई बेस्ट टू अचीव सक्सेस। वन मस्ट ट्राई, ठीक है। अब वन का ये सेंटेंस जो है, इसका वन का ऑब्जेक्ट क्या होता है? फोकस करने वाली बात है कि वन का ऑब्जेक्ट क्या होता है। वन मस्ट ट्राई बेस्ट टू अचीव सक्सेस। वन का जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है वंस।